हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। हम सीरीज़ देख रहे हैं लिमिट कंटिन्यूटी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, जो आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 मैथ्स पेपर 2 का यूनिट 1 है। इसके दो पार्ट पिछले ट्यूटोरियल्स में हम देख चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे पार्ट 3 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अप टू सेकेंड ऑर्डर ये हमने 12th क्लास में पढ़ा था। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। इफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज अगेन अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, we can further differentiate it with respect to independent variable, and this gives the concept of successive differentiation. Let us see. If y is equal to f of x, then we know that dy by dx can be written as f dash x, which is again a function of independent variable x. Second order derivative d2y by dx square will be denoted by f double dash x. Again it can be differentiated with respect to x. We get a third order derivative d3y by dx cube denoted by f triple dash x, and so on. Now this dash, double dash, triple dash are Roman letters. So this derivatives continuously can be written as first derivative of y, second derivative of y, third derivative of y, fourth derivative, Roman letter 4, fourth derivative of y, fifth derivative of y, and so on. Another notation for writing these derivatives are suffix notation: y1 first derivative, second derivative of y, third derivative, fourth derivative, fifth derivative, and so on. If we want to write numbers in power instead of Roman letters, कई बार हायर ऑर्डर में रोमन लेटर तुरंत रिकॉल नहीं हो पाते, तो ऐसी सिचुएशन में यदि हम नंबर यूज़ करना चाहें तो उसको फिर ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है: फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड सो ऑन. In terms of operator d, when d stands for ddx, then these derivatives are dy, d2y, d3y, d4y, d5y, and etc. In terms of f of x, the same notations can be written as ddx of f of x, d2 f of x by dx square, d3 f of x by dx cube, and etc. Or in terms of Roman letters, f dash, f double dash, f triple dash, f fourth derivative of function. So these are successive differentiation, and the process of finding this successive derivative is called successive differentiation. So with this concept, we derive some standard results for function. First is y equal to x power n. We want to find nth derivative of y. So first derivative y1 will be n x power n minus 1, पावर फंक्शन का रूल लगा के. सेकेंड डेरिवेटिव विल बी n अपनी जगह पर है, n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 2. थर्ड डेरिवेटिव विल बी n माइनस 2 और सामने आ गया x पावर n माइनस 3. फोर्थ डेरिवेटिव में ये n माइनस 3 और सामने आ गया x पावर n माइनस 4. इतने डेरिवेटिव्स फाइंड करते चले जाएंगे जिनको देखकर रिजल्ट को जनरलाइज किया जा सके. नाउ सी, जब हम फोर्थ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर n से शुरू होकर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, मतलब ये 4 और 3 में कुछ रिलेशन दिखता है. इतने फैक्टर तक जाएंगे जहाँ पर ये डेरिवेटिव का एक नंबर कम हो, और x के पावर में n माइनस 4. देन थर्ड डेरिवेटिव में यदि ऑब्जर्व करते हैं तो 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, और लास्ट वन इज n माइनस 3 में से एक कम, तो n माइनस 2, और पावर इज ये 3 x पावर n माइनस 3 के फॉर्म में. सिमिलरली y2 की जब बात हो रही है तो 2 फैक्टर है, और सेकेंड फैक्टर में इससे एक कम पर जाके वो फैक्टर रुक रहा है n माइनस 1, और ये 2 यहाँ पावर में n माइनस 2 के फॉर्म में दिख रहा है. सो ये पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए वी कैन राइट y n एज प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स.
starting from n minus 1, n minus 2 up to last factor will be n minus number which is less than 1 by this suffix. So n minus 1 और पावर में n minus this number, x power n minus this number. Now this is n minus n कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तो दिस लास्ट नंबर इज़ 1. और ये सब रिड्यूस होते होते आ रहे हैं, इसका मतलब 1 के पहले 2 होगा, उसके पहले 3 होगा, और x पावर n माइनस n इज x पावर 0 विच इज़ 1, एंड दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n and ending at 1. So it is n factorial, means nth derivative of x power n is n factorial. For example, x power 5 का fifth derivative will be 5 factorial. Now what will be sixth derivative of x power 5? अभी हमने कहा fifth derivative is 5 factorial which is a constant. So next derivative will be derivative of constant which is 0. इसके आगे जितने हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे वो सब 0 होते चले जाएंगे. टेक सेकेंड फंक्शन इज y इक्वल टू ax प्लस b का पावर n. दिस इज अगेन अ पावर फंक्शन बट जनरल पावर फंक्शन ax प्लस b का पावर n. सो सेम पैटर्न से अप्लाई करते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव n ax प्लस b पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन बाय चेन रूल विच इज a. अगेन डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट सेकेंड डेरिवेटिव इज n, ये पावर फिर सामने है n माइनस 1, ax प्लस b पावर n माइनस 2. a पहले से था, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव बोलने से फिर से a आ गया, तो a इंटू ए स्क्वायर. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट थर्ड डेरिवेटिव एज n माइनस 1 कॉन्स्टेंट अपनी जगह पर है, n माइनस 2 सामने आकर ax प्लस b का पावर एक कम हो गया n माइनस 3, a स्क्वायर था, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव a, इट बिकम्स a पावर 3. इतने एक्सप्रेशन सफिशिएंट हो गए जनरलाइज करने के लिए. देखो थर्ड डेरिवेटिव में 3 फैक्टर का प्रोडक्ट है और जो लास्ट फैक्टर है वो इससे एक कम पर जाकर रुक रहा है n माइनस 2. 3 पावर में है n माइनस 3 और a के पावर में ये जो सफिक्स है उतना दिख रहा है. तो इसी को अप्लाई करते हुए nth डेरिवेटिव विल बी प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n माइनस 1, n माइनस 2, लास्ट फैक्टर विल बी n माइनस इससे एक कम n माइनस 1, ax प्लस b का पावर n माइनस दिस नंबर n और a का पावर सेम a पावर n. तो ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने के बाद में रह गया 1, तो 1 है तो इसके पहले एक 2 होगा, उसके पहले 3 होगा, मतलब n से स्टार्ट होके वो रिड्यूस होते होते 3 इंटू 2 इंटू 1 पे ख़त्म हो रहा है. ax प्लस b का पावर 0 एंड a पावर n. एक्सप्रेशन पावर 0 विल बी 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल. So nth derivative of ax plus b का पावर n is equal to n factorial a power n. Now this is constant, this is constant. तो जब इसका हम नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे n प्लस 1th डेरिवेटिव, सो इट विल बी 0. कांस्टेंट बन गया, उसका डेरिवेटिव इज 0. और यदि इससे एक पहले का डिफरेंशिएशन देखना हो, इसका एक पहले का मतलब n माइनस 1th डेरिवेटिव देखना हो, तो एग्जैक्टली हम डेरिवेटिव एक कम करना चाह रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली वी आर इंटीग्रेटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को बैलेंस कर लेगा, तो रह जाएगा n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का पावर n एंड दिस इज कांस्टेंट. तो इसका इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट विल बी आउटसाइड द इंटीग्रल एंड देन रिमेनिंग नंबर विल बी 1 and 1 का इंटीग्रेशन विल बी x, but here our function is ax plus b, so instead of x it will be ax plus b, means we are integrating this with respect to ax plus b. So n minus 1th derivative of ax plus b power n is n factorial a power n into ax plus b. ठीक. Now if we write power as m for y equal to ax plus b का power m,
Then see what is nth derivative. First derivative as usual m ax plus b power m minus 1 into inner function का derivative. Second derivative is m minus 1 ax plus b का power m minus 2 a स्क्वायर. इनर फंक्शन का डेरिवेटिव से a एक और मिलेगा, पहले से एक था. थर्ड डेरिवेटिव m माइनस 1 m माइनस 2 ax प्लस b पावर m माइनस 3 a क्यूब. इन जनरल nth डेरिवेटिव विल बी m माइनस 1 m माइनस 2, लास्ट फैक्टर में m माइनस, इससे एक नंबर कम m माइनस n माइनस 1 ax प्लस b पावर m माइनस n. एंड ये जो ऑर्डर का डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे होते वही a के पावर में है, सो yn में a पावर n. नाउ हियर द कंडीशन इज n मस्ट बी लेस देन m. मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मस्ट बी लेस देन पावर. तो हमको एक्सप्रेशन में वेरिएबल अपीयर होगा, ये इस तरह से यहाँ से. और यदि हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली पावर के बराबर होगा तो ये केस मिलेगा, ये केस मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा. और यदि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन पावर से बड़ा होगा तो रिजल्ट पॉलिनोमियल केस में, तो रिजल्ट विल बी 0. नाउ नेक्स्ट y इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस बी, रेसिप्रोकल ऑफ ax प्लस बी. तो इसको लिखा जा सकता है ax प्लस बी का पावर 1. फिर यही टेक्निक इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं. तो दिस कैन बी सीन वेरी इजीली दैट y1 इज माइनस 1 ax प्लस बी का पावर माइनस 2 इंटू a इनर फंक्शन का डेरिवेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव इज माइनस 1 इंटू माइनस 2 ax प्लस बी पावर माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 बोलने से a स्क्वायर. फिर y3 थर्ड डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 3 सामने है, ax प्लस बी का पावर एक और माइनस 4 a क्यूब. इन जनरल nth डेरिवेटिव, देखो थर्ड डेरिवेटिव में 3 फैक्टर्स है तो nth डेरिवेटिव में n फैक्टर्स होंगे. लास्ट इज नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, सो हियर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अप टू माइनस n. एंड पावर कैसा दिख रहा है, ax प्लस बी का पावर माइनस 4, मतलब इससे एक नंबर ज़्यादा विथ नेगेटिव साइन. सो ax प्लस बी का पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 और इंटू a पावर n. नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 कितने बार है, n टर्म से तो n बार हो गए, तो माइनस 1 का पावर n. फिर बचा यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, तो वो हो गया n फैक्टोरियल, a पावर n रख दिया. और ये जो पावर माइनस है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, ax प्लस बी का पावर n प्लस 1. सो दिस इज द रिजल्ट फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b. We have to remember this result rule. Okay. Nth derivative of 1 upon ax plus b is equal to माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल. ये x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा a का पावर n अपॉन कंप्लीट एक्सप्रेशन का पावर n प्लस 1. सॉरी. नेक्स्ट फंक्शन इज y इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस b. वी वांट टू फाइंड nth डेरिवेटिव. तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स y1 इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव a बाय चेन रूल. अब एक डेरिवेटिव मिल गया, हमको nth डेरिवेटिव फाइंड करना था. और ये जो रिजल्ट है राइट हैंड साइड में, ये 1 अपॉन ax प्लस b जो अभी हमने इसके पहले सॉल्व किया उस फॉर्म में दिख रहा है. तो इसकी हेल्प से हम हमारा nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट डेरिवेटिव आगे है, nth डेरिवेटिव चाहिए, तो रिमेनिंग इज n-1. तो टेकिंग n-1th डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो y1 का n-1th डेरिवेटिव इक्वल टू a कांस्टेंट है, रख दिया ऐसे ही, 1 अपॉन ax प्लस b का n-1th डेरिवेटिव. नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव का n-1 डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव के ऑर्डर्स ऐड होके विल गेट nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू a अपनी जगह. अब इस रिजल्ट, इस एक्सप्रेशन को n-1th डिफरेंशिएशन के लिए लिखना है. तो इससे कंपेयर करते हुए यहाँ पर -1 का पावर n था, तो n-1 के डेरिवेटिव के समय -1 का पावर n-1. फिर
यहाँ n था तो यहाँ आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, फिर a का पावर n था तो यहाँ मिलेगा a का पावर n-1, और यहाँ पर जब nth डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो पावर में n+1 था, तो n-1th डेरिवेटिव के लिए पावर में इससे एक ज़्यादा, तो ax + b का पावर n। ठीक, now this a and this a power n-1 can be combined to get a power n. So rule will be nth derivative of log ax plus b is equal to -1 का पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल a पावर n अपॉन ax प्लस b का पावर n। सो ये बॉक्स में जो बना के रखे हुए ये हमको याद रखने होंगे रूल R3 R2 एंड दिस इज R1 nth derivative of ax plus b with power m. Okay. Further, y equal to e power ax into cos bx plus c। इसके बीच में और कुछ फंक्शंस हैं जो सिंपल है, जिनको सॉल्व किया जा सकता है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ some book on mathematics having this topic. Now product of exponential function and cos bx plus c. So first derivative gives first derivative of second plus second derivative of first, तो e power ax minus cos का डेरिवेटिव माइनस साइन bx plus c into b प्लस सेकेंड फंक्शन अपनी जगह e पावर ax into a। e पावर x कॉमन लिया जा सकता है ब्रैकेट में। अब ये नेगेटिव साइन की टर्म है तो इसको बाद में लिख लिया, पहले पॉजिटिव टर्म लिख लिया a cos bx plus c माइनस b sin bx plus c। एक जगह कांस्टेंट दिख रहा है, फिर cos है, फिर कांस्टेंट है, फिर साइन है, तो इसको देखते हुए हम ये रिजल्ट रिकॉल कर सकते हैं cos a cos b माइनस साइन a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। तो इस पैटर्न में इसको लाने के लिए वी पुट दिस a इन टर्म्स ऑफ सम cos फंक्शन। तो वी नो दैट स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट इज x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। तो उन्हीं की हेल्प लेते हुए वी पुट a इक्वल टू r cos थीटा एंड b इक्वल टू r sin थीटा। When we square and add these two quantities, so we get r square is equal to a square plus b square, which gives r equal to under root of a square plus b square. And when we divide this b equal to r sin theta with a equal to r cos theta, so we get tan theta is equal to b by a, so that theta will be equal to tan inverse b by a. तो ये सब्सटीट्यूशन यहाँ कर देते हैं, तो वहाँ दिख रहा है r cos थीटा cos ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस आर साइन थीटा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, आर कॉमन अंदर है क्या cos थीटा cos बी एक्स प्लस सी माइनस साइन थीटा साइन बी एक्स प्लस सी। ये रिदम में फिट हो रहा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इट बिकम्स cos ऑफ a प्लस b, सो इट इज थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, और वी कैन राइट बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, right, using above identity, this one. So first derivative is r e power ax cos of bx plus c plus theta, where r and theta are given by these relations. Now this is first derivative, again differentiate it with respect to x, so we get second derivative as r constant है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें x है, इसमें x है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में किया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर फंक्शन विच इज b प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर ए एक्स इंटू ए बाय चेन रूल। ई पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, नेगेटिव टर्म को बाद में लिखा, पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा, फिर वही सेम सब्सटीट्यूशन से ए की जगह आर कॉस थीटा, बी की जगह आर साइन थीटा, आर फिर से कॉमन, पहले से एक आर था, आर स्क्वायर बन गया,
और ये जो अंदर टर्म बच रही है cos a cos b माइनस sin a sin b के फॉर्म में बच जाएगी, विच बिकम्स cos ऑफ a प्लस b, तो थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, दैट विल बी बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। तो सेकेंड डेरिवेटिव में इस तरह का रिजल्ट दिख रहा है, आर स्क्वायर ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। फर्स्ट डेरिवेटिव में आर पावर 1 था, थीटा का कोएफिशिएंट 1 था, तो वी कैन जनरलाइज द रिजल्ट। सो इन जनरल nth डेरिवेटिव विल बी आर पावर n ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, वेयर आर is under root a square plus b square and theta is tan inverse b by a. So this is nth derivative for y equal to e power ax into cos bx plus c. Now similar product can be with sin bx plus c. So this result is nth derivative of e power ax sin bx plus c is equal to r की जगह ये रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर n बाई 2 ई पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, तो थीटा की जगह रखा है tan इनवर्स b बाय a. एज एन इलस्ट्रेशन, टेंथ डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 5x कॉस ऑफ 3x प्लस 4. सो पहले इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर कर लो. nth डेरिवेटिव यानी यहाँ पर n इज 10, e power ax means a is 5, cos bx plus c and b is 3 and c is 4. So result will be a square plus b square 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रेज टू पावर n by 2 10 by 2 e power ax cos bx plus c plus n theta, n is 10, tan inverse 10 means number 10 into tan inverse b by a, b is 3, a is 5, 3 by 5. सो इस तरह से फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्ट जिस भी किसी ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखना होगा वो लिख पाएंगे. नाउ दिस इज द टेबल फॉर स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth डेरिवेटिव. हमने ये देखा था, ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसका प्रूफ देखा हमने, इसका देखा. इनके लिए फाइंड किया जा सकता है साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव इज ए पावर n साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2. सिमिलरली फॉर कॉस, एंड इसका प्रूफ देखा तो इसकी हेल्प से ये लिखा जा सकता है. नाउ एग्जाम्पल्स. फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस. लेट y इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 3x. नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. अभी तक जितने हमने रूल्स देखे वहाँ प्रोडक्ट तो नहीं था, तो क्या हम इस प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस वी कैन. वी नो दैट साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी. सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस. ये माइनस साइन को हम यदि ब्रैकेट में शिफ्ट कर दें तो वी कैन राइट साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हाफ. ये ब्रैकेट में शिफ्ट करने से नेगेटिव टर्म पहले आ गई, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. सो वाई इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 3x विल बी हाफ कॉस ऑफ ए माइनस बी 2x रहेगा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी 5x प्लस 3x 8x. सो अब इनके डेरिवेटिव्स पता है, nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले है हमारे पास में. ये cos ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय a पावर n cos ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2. तो टेकिंग nth डेरिवेटिव, तो yn इज इक्वल टू हाफ कॉन्स्टेंट cos 2x का nth डेरिवेटिव माइनस cos 8x का nth डेरिवेटिव. Recall the formula. Nth derivative of cos ax plus b is a power n cos ax plus b plus n pi by 2. Therefore, our nth derivative for given function is half. Now, what is a here? In this case, ax plus b से compare किया तो a is 2, तो 2 power n cos of जो भी कुछ है 2x plus n pi by 2.
माइनस सेकेंड फंक्शन के लिए a इज़ 8, तो 8 पावर n cos ऑफ 8x प्लस n पाई बाय 2. So this is the nth derivative for given y. Now if y is equal to e power ax into cos square bx, तो हमको तो e पावर ax और cos bx प्लस c का डेरिवेटिव पता था. स्क्वायर के कारण अभी तो कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो के स्क्वायर को कॉस ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स या साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है. यस, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. तो दिस बिकम y इज इक्वल टू e पावर ax 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स bx कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2. सो दिस 1/2 इज कॉमन. nth डेरिवेटिव लेते समय ब्रैकेट ओपन हो जाएगा e पावर ax, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा e पावर ax. तो nth डेरिवेटिव लेते समय हाफ अपनी जगह बाहर, इसका nth डेरिवेटिव प्लस इस प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव. e पावर ax फॉर्मूला है a पावर mx का nth डेरिवेटिव इज a पावर mx m इंटू लॉग a का पावर n पावर n. So here base is a, so we'll get log e. Base is e, तो log e will be 1. So it gives एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव उतना ही होता है विथ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय चेन रूल. तो इट विल बी a पावर n e पावर x प्लस यहाँ पर a का काम कर रहा है और b की जगह 2b है. सो r पावर n एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपनी जगह cos 2bx प्लस n थीटा, वेयर r इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b की प्लेस पे 2b का स्क्वायर, थीटा इज tan इनवर्स 2b अपॉन a. इसको सिंप्लीफाई करके बताया जा सकता है और फिर ये r और थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी. सो दैट विल बी द आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट y इक्वल टू e पावर x साइन x का पावर 4. तो ये पावर 4 डिस्टर्ब करेंगे, पहले इसको ठीक करते हैं. कैन बी रिटर्न है साइन स्क्वायर x का स्क्वायर. नाउ साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला काम नहीं करेगा. फिर इसका स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर बोलकर 1/4 बाहर आ गया. e पावर x a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये ठीक है, ये ठीक है. फिर से कॉस स्क्वायर 2x प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो इसकी जगह पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसका डबल हो गया 4x कंप्लीट अपॉन 2. ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. तो फर्स्ट टर्म इज 1/4 e पावर x, नेक्स्ट टर्म इज 2 डिवाइड हो गया 1/2 e पावर x cos 2x. नेक्स्ट टर्म इज 4 2 8 1/8 e पावर x, एंड देन नेक्स्ट टर्म इज 1/8 e पावर x cos 4x. तो ये e पावर x, ये e पावर x की टर्म कंबाइन कर सकते हैं. देन दिस इज e पावर x cos 2x, e पावर x cos 4x. टेकिंग nth डेरिवेटिव, सब टर्म का nth डेरिवेटिव लगने के बाद वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्मूले. अप्लाई दोस, दिस विल बी द आंसर. y इक्वल टू e पावर x cos x इंटू cos 2x. e पावर x के साथ में दो cos का प्रोडक्ट है, तो फिर से इसको कन्वर्ट करना होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में. तो वी नो दैट cos a cos b इज हाफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, वी गेट हाफ cos ऑफ a प्लस b इज 3x प्लस cos ऑफ a माइनस b इज cos ऑफ माइनस x, बट cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो वो cos x रह गया. ब्रैकेट ओपन करके फिर nth डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव इनके रूल पता है, इसके पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व किया. बाय सेम मेथड कंप्लीट द सॉल्यूशन.
Now polynomial problems. Let y equal to x power 4 upon x minus 1 x minus 2 and we want to find nth डेरिवेटिव. तो न्यूमरेटर का डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, इसको एक्सपांड कर दिए तो डिवीजन इज पॉसिबल. तो फर्स्ट डिवाइड x पावर 4 बाय दिस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाय डिवीजन algorithm मेथड. This is familiar to you. So our quotient is x square plus 3x plus 7 and remainder is 15x minus 14. So this can be written as quotient plus remainder upon divisor. तो ये तो इसको नंबर दे दिया 1. फैक्टर फॉर्म में लिखा है इसको, डिनोमिनेटर को फैक्टर फॉर्म में. नाउ डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है. हमको जो रूल पता है वो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव का रूल पता है. तो ये प्रोडक्ट को हमको ब्रेक करना होगा. पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको ब्रेक किया जा सकता है. सो कंसीडर 15x माइनस 14 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 एस ए अपॉन x माइनस 1 प्लस बी अपॉन x माइनस 2 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड. ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आगे कंप्लीट ये सीखा है 12th क्लास में. एलसीएम इज प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ टर्म आगे. सिंस डिनोमिनेटर्स आर सेम देयरफॉर न्यूमरेटर्स मस्ट बी सेम. इसको ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई किया. टर्म ऑफ एक्स और कांस्टेंट के लिए कंपेयर किए कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म. वी गेट 2 इक्वेशंस. नाउ solving these 2 equations by elimination method or by Cramer's rule, we can find value of a and b. Put these values of a and b in partial fractions. So our 15x minus 14 upon product is a की वैल्यू आई -1 अपॉन x minus 1 प्लस b की वैल्यू आई 16 अपॉन x minus 2. ये एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर देते हैं 1 में. So our y becomes x square plus 3x plus 7. This is next term minus 1 upon x minus 1 plus 16 upon x minus 2. Now taking nth derivative. Now naturally when we are saying nth derivative, तो this will not be second derivative. Otherwise direct second derivative find करने के लिए बोला गया होता था. So for nth derivative that n must be greater than 2. So derivative of this will be 0. यहाँ कंडीशन लिखी हमने for n greater than 3. Second derivative of x square will be 2 factorial and third derivative will be 0. इन सब का भी 0 हो जाता था. Now apply formula for nth derivative of 1 upon ax plus b. So it is minus 1 power n factorial. A coefficient of x is 1, तो 1 का पावर n upon x minus 1 का पावर n plus 1 प्लस 16 अपनी जगह. इट इज़ अगेन इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी. ए इज़ 1 तो माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल 1 का पावर n अपॉन x माइनस 2 का पावर n प्लस 1. दिस इज द nth डेरिवेटिव फॉर गिवन फंक्शन y. लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4. वी हैव टू फाइंड nth डेरिवेटिव. So this can be written as x square minus 2 square, a square minus b square का फॉर्मूला a minus b a plus b. अगेन डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है, चलेगी नहीं. पार्शियल फ्रैक्शन से उसको कन्वर्ट करते सम और डिफरेंस में. द मेथड यू नो. फाइंड वैल्यू ऑफ a and b, पुट वैल्यूज a and b and then take nth derivative. This is our y. इसका nth derivative is constant. 1 upon x minus 2 का nth derivative 1 upon 4. Next 1 upon x plus 2 का nth derivative. Apply the formula. Will give you answer. Next problem, y equal to 4x upon x minus 1 का whole square into x plus 1. तो न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है. ओके ठीक है. Partial fractions will be x plus 1 is
नॉन रिपीटेड, तो a अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इज रिपीटेड ट्वाइस, तो पार्शियल फ्रैक्शन लिखते समय b अपॉन एक्स माइनस वन प्लस c अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर. Follow the rules of partial fractions. Further, find values of a, b, c. Problem can be completed for you. Next, y equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Now this expression is familiar for the identity 2 tan theta upon 1 minus tan square theta is tan 2 theta. यदि डिनोमिनेटर में प्लस हो तो इट इज साइन 2 थीटा, एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा. ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये दोनों को डिवाइड किया तो ये रिजल्ट मिलता है tan 2 थीटा का. तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करना चाह रहे हैं तो वी पुट x इक्वल टू tan थीटा विच गिव्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, पुट कर दिया. y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज tan 2 थीटा. नाउ इनवर्स tan and tan both are here, so f inverse f gives identity function, so identity of 2 theta will be 2 theta. What is theta? Tan inverse x. So differentiating with respect to x, first हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है, therefore we are doing like this. फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट अपनी जगह, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब हमको तो nth डेरिवेटिव फाइंड करना था. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या हम लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक बार ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया तो फिर हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव. उसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम कंप्लीट कर पाएंगे. तो सी एक्स स्क्वायर दिस प्लस 1 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ माइनस 1. नाउ दिस माइनस 1 इज आई स्क्वायर, सिंस आई इज अंडर रूट माइनस 1, सो आई स्क्वायर इज माइनस 1. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी. ट्रायल और एरर मेथड से इसके पार्शियल फ्रैक्शन तैयार कर सकते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन के साथ में ये एक्सप्रेशन तैयार होगा. अब ये है फर्स्ट डेरिवेटिव एंड वी वांट nth डेरिवेटिव, तो टेकिंग n माइनस 1 टाइम और डिफरेंशिएटिंग n माइनस 1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का n माइनस 1 डेरिवेटिव 1 बाय आई इज माइनस आई. कैसे? ये यहाँ है देखो, 1 अपॉन आई इज 1 अपॉन आई इंटू आई अपॉन आई, दिस इज आई अपॉन आई स्क्वायर इज माइनस 1, आई अपॉन माइनस 1 इज माइनस आई. जनरली डिनोमिनेटर में हम कोई इमेजिनरी यूनिट रहने नहीं देते, देयरफॉर वी कन्वर्ट दिस 1 अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आई. n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म 1 अपॉन एक्स माइनस आई का n माइनस 1 डेरिवेटिव माइनस ये सेकेंड टर्म का n माइनस 1 डेरिवेटिव. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, फाइंड n माइनस 1 डेरिवेटिव. तो बाय फॉर्मूला इट विल बी माइनस 1 पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का डेरिवेटिव a कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 का पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस a का पावर जो डेरिवेटिव उससे एक बढ़ा देते हैं, तो n माइनस 1 का डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रहेगा पावर n. सिमिलरली अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दिस टर्म ऑल्सो, इट गिव्स द आंसर. फर्स्ट डेरिवेटिव का n माइनस 1 डेरिवेटिव विल बी nth डेरिवेटिव. So this was the part 3 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लिबनिट्ज थ्योरम और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, ये हम देखेंगे. टिल देन टेक केयर. जय गणित.